Dr. Shoaib Mithani here. Welcome all the audience and special welcome to Dr. Salim Virani. Very old time memories back after like probably 22 years from now. Dr. Salim Virani is a graduate from Khan University, class of 1998. He graduated in 1998, and thereafter he left to USA. He did his residency in internal medicine from University of Miami, and followed by a fellowship in cardiology at Texas Heart Institute. In all these three places, he was awarded as the best doctor. Like during the Khan tenure, he graduated as a best medical graduate award in 1998. During the residency, he was awarded the best resident award. And thereafter, during the cardiology fellowship, he served into the same hospital where he did his fellowship. He served as a chief cardiology fellow. While going through his profile, I found it difficult what to say and what not to say. But like just to make it a brief, his clinical practice includes the preventive cardiology. And this is the reason that I have chosen him as our speaker today, because the reason that topic was chosen today is to prevent the cardiac disease rather than treating it. Like before it appears in the growing aging population, we should just start thinking about how to prevent that. So he has done a lot of work on the prevention side of the cardiac disease. That's why we have arranged his talk today. He has authored more than and peer review for more than 400 publications, and he has some contribution in writing the chapters in the textbooks. He has chaired more than 50 literary sessions and more than 100 online, in-person and media interviews. I welcome him and feel honored that he is with us today because of his field of interest, which is the preventive cardiology. I couldn't find anyone better than him who will talk about the preventive cardiology. Here I just want to clarify one point, that why I named this session as how can I avoid heart attack and angina. This is because not everybody understands the medical words. That's why I did not want to put it as ischemic heart disease or cardiac diseases or anything. हार्ट अटैक ये वो टर्म है जो हर आम आदमी को भी समझ आ जाती है. आम आदमी हार्ट डिजीज को, कार्डियक डिजीज को या कॉरोनरी डिजीज को या इस्केमिक डिजीज को जो है वो हार्ट अटैक का नाम देते हैं. तो इसलिए मैंने भी अपने टाइटल में हार्ट अटैक का नाम रखा और साथ ही एंजाइना रखा, क्योंकि ये वर्ड भी है बहुत सारे लोग समझ जाते हैं. तो अब बाकी काम जो है वो डॉक्टर विरानी का है, वो इसके बारे में हमें मजीद ब्रीफ करेंगे. एंड आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर विरानी टू कीप द ऑडियंस इन हिज माइंड दैट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज नॉट medical related, but they are educated, qualified people, and they would love to hear the positive suggestion from his side. Over to Dr. Virani, please. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोएब एंड मेमन प्रोफेशनल एसोसिएशन, आप लोगों का फोरम जो आप लोगों का है. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. It's my pleasure to basically talk about something that's near and dear to me. So Dr. Shoaib, I'll keep it a mix of English and Urdu. Will that work? That will be wonderful. ठीक है. मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, हमारे जो सारे कॉलीग, जो सारे ऑडियंस इस वक्त हैं, मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आप अपना जो माइक है उसको म्यूट पे कर लें, ताकि बैकग्राउंड जो नॉइज है वो ना हो. अब तो बेसिकली what I will try to do in the next 40-45 minutes, and then I can take some questions as well based on what Dr. Shoaib thinks is the best way moving forward. हम बात करेंगे कि how to avoid heart attacks, what to do, what not to do. और I'll try to keep it very practical. मैं इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहूँगा जो बहुत टेक्निकल है. ये
टॉक जो है मैं एटलीस्ट 4-5 मरतबा तो दे चुका हूँ जनरल ऑडियंस के लिए, तो आई असूम के होपफुली इसमें आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए प्रैक्टिकल होंगी। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज के देखें आप वो बड़ी एक सेइंग है कि लर्न ऑन सैटरडे फॉरगेट बाय मंडे। तो कोशिश करें कि सिर्फ फील गुड टाइप की जो है वो प्रेजेंटेशन ना हो, वरना फ़ायदा नहीं होगा इसका। मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा विच आर वेरी स्टैगरिंग फॉर अस एज साउथ एशियंस। तो मेरी होप आपसे ये है कि अगर मैं 10 चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप 10 चीज़ें सारी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करें, अपनी फैमिली में इम्प्लीमेंट ना करें, लेकिन कम से कम 1 से 2 चीज़ें ज़रूर जो आपको लगती हैं कि जो आप कर सकते हैं वो आप करें। Again, before anybody starts a talk, it's always good to let people know what are your disclosures, where you're getting the funding from. These are the places that support the research that I do. So basically, आप लोग जो टर्म सुनेंगे, you are all professionals, तो मैं आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। जो टर्म आजकल यूज होती है ना, वो होती है टर्म नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। आपने ये टर्म सुनी होगी, NCDs। वजह यह है कि सिर्फ हार्ट अटैक की हम बात नहीं करते, इन चीज़ों में हार्ट अटैक भी आ जाता है, डायबिटीज़ भी आ जाता है, स्ट्रोक भी आ जाता है, कैंसर भी आ जाता है, और जो हमारे ये लंग के जो डिजीज होते हैं ना स्मोकिंग वगैरह से रिलेटेड, वो सब एक चीज़ में आ जाते हैं। ये जो कैटेगरी है इसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, जो कि डिफरेंट है कंपेयर टू कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? जो इन्फेक्शन है, कोविड-19 जो इस वक्त है, जो फ्लू है, वो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। मगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो एक सेपरेट कैटेगरी है, जो कि वो डिजीज है कि एक आदमी दूसरे को नहीं दे सकता। अगर आपको कैंसर है तो आप किसी दूसरे को कैंसर नहीं दे सकते, अगर आपको हार्ट डिजीज आप किसी और को नहीं दे सकते। तो इन सबको एक बकेट में रखा जाता है क्योंकि ये सारे एक ही किस्म के रिस्क फैक्टर्स भी शेयर करते हैं। अगर आप स्मोक कर रहे हो तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाएगा, लंग डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाएगा, कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाएगा। इस वजह से हम इन तमाम चीजों को एक कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो ये टर्म आप सुनेंगे, आई थॉट क्योंकि सारे प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, इट विल बी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस टर्म, क्योंकि सारी जो गवर्नमेंट्स इस वक्त हैं वो इसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की टर्म यूज कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कुछ नंबर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको आइडिया हो कि हम किस किस्म के नंबर से इस वक्त डील कर रहे हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं आज। मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ, 36 मिलियन, 18 मिलियन, 63% एंड 9 मिलियन, ठीक है। इन नंबर्स पे आप ध्यान दीजिएगा। 36 मिलियन जो है नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एवरी ईयर, हर साल जो है वो तकरीबन 36 मिलियन लोग हैं जिनकी डेथ होती है इस वर्ल्ड के अंदर बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। पॉपुलेशन पूरे सीरिया की जो इस वक्त है वो 18 मिलियन है। वहां पे एक वॉर चल रही है, पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है, राइट। आप लोगों को पता होगा। मगर सीरिया की जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 18 मिलियन है। तो अगर आप सीरिया की पॉपुलेशन डबल कर दें, 2 कंट्रीज अगर आप बना दें, सीरिया 1 सीरिया 2, उतने लोग हैं जो हर ईयर उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। 50% जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, उनकी पॉपुलेशन 18 मिलियन से कम है। तो आप समझें कि पूरी की पूरी कंट्रीज वाइप आउट हो जाएं बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एवरी ईयर। इतनी डेथ्स होती हैं इसकी वजह से। 63% ऑफ द डेथ्स दैट अकर एवरी ईयर आर ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये डाटा 2 साल पुराना है। अभी 2 हफ्ते पहले WHO ने नया डाटा जो पब्लिश किया है उसके हिसाब से 70% ऑफ द डेथ्स दैट occur due to non-communicable diseases. But it's not all doom and gloom. इतनी ज्यादा डिप्रेशन की बात नहीं जो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, बिकॉज दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें 9 मिलियन डेथ्स जो है ना इन 36 मिलियन में, जो कि अबाउट 25% है, वो उनमें होती है जिनकी एज 60 से कम है। तो इट्स नॉट जस्ट के डेथ्स होती हैं, बट बहुत ज्यादा प्री मैच्योर डेथ्स भी होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी वर्ल्ड में इस वक्त 36 मिलियन जो लोग हैं, जहाँ मेन एंड वीमेन दे आर बोथ अफेक्टेड इक्वली। 9 मिलियन डेथ्स इसमें होती हैं जो कि प्री मैच्योर हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज आर प्रिवेंटेबल। याद रखिएगा कि NCDs आर प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ठीक है। बहुत ज्यादा होपफुल होके जाइएगा इस टॉक के बाद, बट रिमेंबर दे आर शेयर्ड रिस्क फैक्टर्स।
डाइट हो गई, हमारी सबकी डाइट हमें पता है पाकिस्तान में किस किस्म की डाइट है, इंडिया में किस किस्म की डाइट है, हम यूएस में मूव हो जाते हैं, कनाडा में मूव हो जाते हैं, यूके में मूव हो जाते हैं, तो भी हमारी डाइट्स काफ़ी ख़राब रहती हैं। हमें पता है ओबेसिटी के बारे में, आप सबको पता होगा मोटापा के बारे में, आप सबको पता होगा स्मोकिंग के बारे में। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं। जो हार्ट डिजीज जिसे हम कहते हैं, हार्ट अटैक किसी को हो गया, एंजिना हो गया, उसमें 1 in 3 इज प्रिवेंटेबल। कैंसर 1 in 5 कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। अगर आप लंग के जो डिजीजेस हैं 2 in 5 आर प्रिवेंटेबल। एंड स्ट्रोक जो लकवा कहते हैं ना, कि फालिज हो गया, हाथ नहीं मूव हो रहा, बात नहीं कर सक रहे, पैर मूव नहीं कर सक रहे, 1 in 3 आर प्रिवेंटेबल। तो ऐसी बात नहीं है कि ये बस होना है तो होगा, हमारे अपने कंट्रोल में है ये चीजें। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज ना भूलें कि ठीक है लोगों की इससे डेथ होती है, मगर ये चीजें प्रिवेंटेबल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जितने भी एनसीडीज हैं दे शेयर कॉमन रिस्क फैक्टर्स। मोटापा जो है आप लोगों को पता होगा, उससे हार्ट डिजीज भी होता है, स्ट्रोक भी होता है, और जो खवातीन यहाँ पे हैं उनको मैं बताऊं कि उससे ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। और आप सबको पता होगा कि हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में, इंडियंस, पाकिस्तानीज में, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन भी है और काफी जल्दी भी होता है। ओबेसिटी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो इस वजह से फायदा ये है कि अगर एक चीज पे हम कंट्रोल करते हैं, अगर हम ओबेसिटी पे कंट्रोल करते हैं, मोटापे पे कंट्रोल करते हैं, अगर हम स्मोकिंग पे कंट्रोल करते हैं, अगर हम हमारी डाइट पे कंट्रोल करते हैं, तो उससे सिर्फ हमारा हार्ट अटैक होने का रिस्क कम नहीं होगा, हमारा कैंसर का रिस्क भी कम होगा, हमारा डायबिटीज का रिस्क भी कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको, अगर मैं आज 10 चीजें बता रहा हूं तो आप पिक करें 1 से 2 चीजें जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स की। ठीक है, हार्ट अटैक वो होता है कि वो कहते हैं ना, आदमी के दर्द हो रहा है सीने में और फिर हार्ट काम करना छोड़ देता है। स्ट्रोक फालिज को कहते हैं, जब हमारी वही चीज ब्रेन में हो रही है, जिसे लोग ब्रेन अटैक कहते हैं। जो हार्ट के साथ हो रहा है, अगर आपके साथ ब्रेन के साथ हो तो आप बात नहीं कर सकते, हाथ नहीं हिल रहा, आपका पैर नहीं हिला सक रहे, जो कहते हैं ना लकवा हो गया, फालिज हो गया, वो जो है वो स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो यूएस के अंदर अगर हम देखें, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के नंबर हमारे पास नहीं है, तो एवरी 34 सेकंड्स जो है ना, एक आदमी को हार्ट अटैक होता है यूएस। पाकिस्तान में भी आई टेल यू कि प्रोबेबली इतना ही कॉमन होगा। हर 40 सेकंड्स में यूएस के अंदर एक आदमी को स्ट्रोक होता है। 1 minute and 24 seconds अ पर्सन डाइज ऑफ हार्ट अटैक। सो जब से हमने 9 बजे, हमारे यहाँ तो इस वक्त 9 बजे थे, आपके यहाँ शाम के 7 बजे थे, जब से स्टार्ट किया है, ऑलरेडी 20 से 25 लोगों की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक इन यूएस। हर 4 मिनट में एक आदमी की डेथ होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। सो रिमेंबर, ये यूएस के नंबर्स हैं, मगर ये नंबर पाकिस्तान पे भी लागू होते हैं। पाकिस्तान में नंबर्स इससे भी ज्यादा खराब हैं। तो अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक होते क्या है। हार्ट अटैक ये है कि अगर ये आपकी एक आर्टरी है, आर्टरी क्या होती है, जो कि ब्लड सप्लाई करती है आपके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को। ठीक है, तो वो जो शरियानें हैं जो होती हैं ना, उन्हें हम आर्टरी कहते हैं। तो उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए और अचानक से, फिर वो कहते हैं कि अगर फट जाए और पूरी आर्टरी जो है उसमें क्लॉट हो जाए, तो पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो आपका हार्ट का जो पार्ट जिसे वो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, वो काम करना छोड़ देता है। अप टू 30-40% लोग जो है वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच सकते। आपने अक्सर सुना होगा कि आदमी या कोई औरत थी, वो सोए हुए थे और उनकी डेथ हो गई, नींद में ही उनकी डेथ हो गई। वेल, उसकी वजह ये है कि सोते सोते उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा चीजें। अब हम बात करते हैं कि एज साउथ एशियन, क्या हमारा रिस्क हार्ट अटैक होने का ज्यादा है? क्या हार्ट अटैक छोटी उम्र में होते हैं साउथ एशियन में? और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ये चीज़ें समझें, ताकि आप अपनी फैमिलीज के पास भी ले जाएं और अपनी कम्युनिटी में भी लेके जाएं। आप साउथ एशियंस देखें, जब हम बात करते हैं कि साउथ एशियंस कौन लोग हैं, तो ये 7 कंट्रीज में जो लोग पैदा हुए हैं उनकी हम बात करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका। तो याद रखिएगा, इन्हें हम कहते हैं साउथ एशियंस। 1/5 ग्लोबल पॉपुलेशन साउथ एशियंस हैं। हमारा रिस्क कंपेयर टू दूसरे आसपास की जो कम्युनिटीज हैं, चाहे वो अमेरिकन हो गए, चाहे यूरोपियंस हो गए, या चाइनीज और जापानीज हो गए, हमारा चांस कि हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक होगा, हमारा रिस्क 3 से 5 गुना ज्यादा है उन लोगों से। 3 से 5 गुना ज्यादा।
दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमारे में जरूरी है। आप सबको ये चीज पता है, लेकिन मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी जो स्टडीज वर्ल्ड में हुई हैं, उसमें ये पता चला है कि हार्ट अटैक 10% जो हार्ट अटैक्स होते हैं या जिससे लोगों की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से, वो 40 साल की उम्र से पहले होते हैं, बिफोर द एज ऑफ 40 इयर्स। 10% ऑफ द हार्ट अटैक्स अकर इन साउथ एशियंस बिफोर द एज ऑफ 40। आज से 20-30 साल पहले हम सुनते भी नहीं थे कि 30 ईयर ओल्ड किसी को हार्ट अटैक हुआ है। अब हमारी कम्युनिटी में, साउथ एशियन कम्युनिटी में, इट्स अ कॉमन थिंग कि कोई 35-38 ईयर ओल्ड को हार्ट अटैक हो रहा है। 10% ऑफ द हार्ट अटैक्स अकर बिफोर द एज ऑफ 40। मीडियन एज हमारे अंदर जो है, जो कि 50% ऑफ हार्ट अटैक्स अकर बाय द एज ऑफ 53 ईयर्स। दैट इज एक्सट्रीमली यंग एज टू हैव हार्ट अटैक्स। ऑलमोस्ट अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो 10 साल ऑन एवरेज पहले हमारे अंदर हार्ट अटैक होते हैं। अब आप सोचें कि ये कितना ज्यादा हमारे अंदर कॉमन है। आई वुड जस्ट टेल यू कि डॉक्टर शुएब को पता होगा, हमारे AKU के कुछ ग्रेजुएट्स को हमने पिछले 1 साल के अंदर, जिनकी 40s के अंदर एज थी, हमने लूज किया है। उन्हें हार्ट अटैक हो गया, कोई हॉस्पिटल में राउंड कर रहे थे, हॉस्पिटल ड्राइव करके जा रहे थे। तो ये चीज ऐसी है कि ये किसी को भी नहीं बख्शती। स्पेशली हम एज प्रोफेशनल्स, हमारा लाइफस्टाइल कभी कभार होता है कि हम चेयर पे ही बैठे हुए पूरा दिन अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उठते नहीं हैं, काम वॉकिंग नहीं कर रहे होते, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है। शादीशुदा है तो जो है वो फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। तो हमारे 20 से 30 साल इसी में गुजर जाते हैं और अचानक से फिर पता चलता है कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को स्ट्रोक हुआ। क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या हार्ट अटैक और स्ट्रोक प्रिवेंटेबल हैं? और आंसर जो है उसका है यस, दीज आर प्रिवेंटेबल। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडीज हुई थी वर्ल्ड में, जिसे हम इंटर हार्ट स्टडी कहते हैं। 30,000 लोगों को इन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने क्या मालूम किया कि 90% ऑफ द हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स आर प्रिवेंटेबल। यहाँ मैंने सारी चीजें लिखी हैं जिन चीजों से हार्ट अटैक होता है या प्रिवेंटेबल है। आप देखें ये सारी चीजें प्रिवेंटेबल हैं। स्मोकिंग, eating fruits and vegetables, alcohol, exercise, blood pressure, diabetes, obesity, मोटापा, साइकोसोशल स्ट्रेस जो हमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी चीजों को अगर हम कंबाइन कर दें तो 90% जो हार्ट अटैक्स हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अर्ली हो रहे हैं हमारी कम्युनिटी में। इम्पॉर्टेंट ये है बात कि ये प्रिवेंटेबल भी हैं, इनका कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो वो मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो प्रिवेंशन है हार्ट अटैक और स्ट्रोक की, इट्स एज इजी एज ABCD। ठीक है, तो वो असेस करें पहले हमारा रिस्क। A फॉर असेसिंग रिस्क, A फॉर एंटीप्लेटलेट थेरेपी, कि आपको एस्पिरिन की जरूरत है या नहीं। B फॉर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर सही है या नहीं। C फॉर कोलेस्ट्रॉल। C फॉर सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको सेसेशन, हम इन सारी चीजों की बात करेंगे। D इज फॉर डाइट मैनेजमेंट। D इज फॉर डायबिटीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एज वेल। मैं आपको डेटा बताऊंगा कि हमारे साउथ एशियंस में डायबिटीज 2 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू दूसरी कम्युनिटीज के, बहुत ज्यादा है। E इज फॉर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर आप ये ABCD याद रखें, अपनी फैमिली से बात करें, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं उनसे बात करें, ABCD बड़ी इजी है इसे याद रखना। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि अब ऐसे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं कि आप जब आपके डॉक्टर से बात करेंगे कि मुझे जो है वो असेस करना है कि मेरा हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क क्या है, तो बड़े इजीली अवेलेबल जो है वो कैलकुलेटर्स हैं। उसमें आपका ब्लड प्रेशर डालें, आप आपका कोलेस्ट्रॉल डालें, आपकी एज डालें और आपका जेंडर डालें कि आप मेल हैं फीमेल हैं, तो उससे आपको बता सकते हैं कि रफली आपका रिस्क क्या है अगले 10 साल में हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप लोग यंग भी हैं, यंग प्रोफेशनल्स है और आप लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे, आई वुड से एटलीस्ट वंस एवरी ईयर डॉक्टर के पास जाएं और पूछें उस डॉक्टर से आप कि आप मुझे बताएं कि मेरा रिस्क हार्ट अटैक और स्ट्रोक का क्या है। ठीक है, हर कंट्री के हिसाब से स्पेसिफिक रिस्क कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। तो A इज फॉर असेसिंग रिस्क। दूसरी A वाज फॉर एस्पिरिन। अब एस्पिरिन का डाटा काफी क्वेश्चनेबल है कि जिनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक अब तक नहीं हुआ उन्हें लेनी चाहिए या नहीं। तो आप जरूर अपने डॉक्टर से बात करें, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम उस पर बात कर सकते हैं। जिनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक या एंजिना पहले हो चुका है उनके लिए एस्पिरिन लेना बहुत जरूरी है। मगर जो पहले हम कहते थे ना कि आप एस्पिरिन खाओ आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा, अब जो नई स्टडीज आई हैं उसके हिसाब से शायद हर एक को एस्पिरिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने A की बात की, असेस रिस्क, थिंक अबाउट एस्पिरिन। B इज फॉर ब्लड प्रेशर। याद रखिएगा कि ये बड़ी गलत फहमी है पाकिस्तान में, इंडिया में, इवन US में,
कि मुझे अगर सर में दर्द नहीं हो रहा तो मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक होगा। आई एम श्योर कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें तो आपकी मदर, आपकी फादर आपको यही कहेंगे मेरा 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 तो ब्लड प्रेशर बेटा आज ठीक है। हाँ, आज सर में दर्द हो रहा है तो मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। देखें, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना और सर में दर्द होना, जब तक सर में दर्द होगा ब्लड प्रेशर की वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी 200 सवा 200 हो चुका होगा। That's not the time to be treating it. The time is to treat it when it's mildly elevated, so you get all the benefit from treatment of blood pressure. अगर ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल करते हैं तो हमारा हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों का रिस्क कम होगा। सिर्फ वही कम नहीं होगा, उसके अलावा आईज, हमारी जो बीनाई है वो भी उससे बेहतर रहेगी, और उसके अलावा किडनीज जो कि फेल होती हैं, सबसे कॉमन रीजन जो है वो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो हमने बात की ए असेस रिस्क, एस्पिरिन, हमने बी की ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अब आप देखिए, जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो लेस देन 120/80 है। पहले 140 या उससे ऊपर होता तो हम कहते थे ट्रीट करें, अब हम कहते हैं कि 120 से 129 भी अगर है तो उसे हम एलिवेटेड कहते हैं। स्टेज 1 ब्लड प्रेशर पहले हम 140 से ऊपर कहा करते थे, अब हम कहते हैं कि 130 to 139 अगर आपका ऊपर का नंबर है और नीचे का नंबर 80 to 89 है तो भी आपको जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है, स्टेज 1। तो अब ये जो गोल्स है ट्रीटमेंट के ब्लड प्रेशर के वो और भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए और स्ट्रिक्ट हो गए। आपको आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे रखना है। ठीक है, तो हमने ए की बात की, हमने बी की बात की, ब्लड प्रेशर की हम अगर बात करें तो क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहले हम कहते हैं डैश डाइट। आपको मैं एक प्लेट दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी प्लेट होनी चाहिए, जो कि बड़ी डिफरेंट है। वो एक शादी ब्याह की हमारी प्लेट होती है ना, कि पूरी प्लेट भरी हुई है, वो टिक्का भी पड़ा हुआ है, गोश्त भी पड़ा हुआ है और 4-5 नाने भी पड़ी हुई हैं। वो मैं प्लेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एक हेल्दी प्लेट क्या होती है। तो उससे आपको आइडिया होगा। हमारी डाइट अगर आप देखें तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बड़ी कम है हमारी डाइट में, और नान, चावल और जो है वो मीट बहुत ज्यादा है। जरूरी ये है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम बढ़ाएं, जितनी हम रोटी, नान और ये चावल हमारी डाइट में कम कर सकें उतना ही ज्यादा फायदा। इस सिर्फ ये डाइट की चेंज से काफी स्टडीज ने शो किया है कि 10 to 11 मिलीमीटर आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये इक्विवेलेंट है एक दवाई लेने से। 2 दवाइयां, कभी एक दवाई ऑन एवरेज आपका ब्लड प्रेशर 5, 6, 8 मिलीमीटर गिराएगी, लेकिन अगर डैश डाइट आप लेते हैं तो ऑलरेडी 10 मिलीमीटर आपका ब्लड प्रेशर खुद ही गिर जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर चीज दवाई नहीं है, काफी चीजों में लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। सोडियम, नमक कम करना, ऊपर से हम हर चीज में जो नमक डालते हैं हमारी पाकिस्तानी डाइट में बहुत ज्यादा नमक होता है, उसे हम आराम आराम से कम करें। फौरन से आप नमक कम करोगे तो आपको जायका बहुत डिफरेंट लगेगा, मगर अगर आप थोड़ा सा नमक आज कम करते हो, फिर एक हफ्ते बाद थोड़ा और कम करते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 से 3 महीने के अंदर आराम से आपका जो नमक है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्लड प्रेशर थोड़ा कम करते हो, स्मोकिंग तो आपको छोड़ देखें, अगर आज के ज़माने में कोई प्रोफेशनल स्मोक कर रहा है या हुक्का यूज़ कर रहा है तो देखें उसके बाद हमारे पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आज भी हम इस ज़माने में भी अगर स्मोकिंग कर रहे हैं। मगर अगर कोई कर रहा है तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। अल्कोहल, अगर हमारे तो वैसे भी मज़हब में भी लोग पीते नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी कॉमन होता जा रहा है पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएस के अंदर, तो अगेन उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमें आजकल पता चली है, स्लीप एपनिया, जो कि बड़ा कॉमन है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, जो स्नोर करते हैं लोग रात को, राइट, खर्राटे जो लेते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप आपके डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस अवेलेबल है, बट रिमेंबर ये बड़ी सिंपल सी चीज है, बट मेडिकेशंस ओनली वर्क व्हेन यू टेकिंग इट। मेडिकेशन सिर्फ उस वक्त लेना कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, नहीं, उस तरह मेडिकेशंस काम नहीं करते। मेडिकेशंस अगर हम लें तो हम रोजाना लें, क्योंकि हमें पता चलता है कि अगर हम स्टडीज को देखें 50% जो लोग हैं वो हमारे अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस रोजाना नहीं लेते। याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर इवन 30, 35, 40 ईयर की एज पे भी बहुत लोगों को होता है, पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएस में। तो अपना ब्लड प्रेशर आप हर साल जरूर चेक कराएं। अगर घर पे चेक करना है तो घर पे भी आप चेक कर सकते हैं, मगर डेफिनेटली डॉक्टर के ऑफिस में चेक करवाएं, ताकि आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर के लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। सी, जब हम अब हमने ए की बात की, असेस रिस्क, एस्पिरिन के बारे में सोचें, बी हमने बात की ब्लड प्रेशर, सी इज फॉर कोलेस्ट्रॉल। तो आप लोगों के लिए जरूरी है, 3 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल, एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स। वो मैं पेशेंट से इस तरह बात करता हूँ कि एल फॉर लाउजी,
तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। एच हाई अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, और ट्राइग्लिसराइड जो कि हमारे में बहुत ज्यादा कॉमन है, पाकिस्तानीज में बहुत ज्यादा हाई होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। वो एलडीएल जो है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिससे हार्ट अटैक होता है। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो कि कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जो बिल्डअप हुआ होता है, शरियानों में जो बिल्डअप हुआ होता है, उसके दोबारा लेके आता है लिवर तक, ताकि लिवर उसे बाहर फेंक दे बॉडी से। तो एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक किस्म का फैट है जो कि हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को और भी ज्यादा स्टिकी बना देते हैं कि वो और खराब हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स पाकिस्तानीज में, हमारी कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सिंपल शुगर्स खाते हैं, चावल खाते हैं बहुत ज्यादा नाने खाते हैं, डायबिटीज हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजों से ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अगेन हार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी है, डायबिटीज का कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, वेट लॉस से फायदा होता है। और दूसरी दवाइयां हैं जिनमें मोस्ट कॉमन जो है वो स्टैटिन हैं। अगर आपको किसी डॉक्टर ने स्टैटिन दवाई प्रिस्क्राइब की है, जिसका हमेशा नाम के एंड पे और होता है, लिपिटोर, क्रेस्टोर, जोकोर, प्रेवोकॉल, ये दवाइयां अगर आपको प्रिस्क्राइब की हैं तो अगेन आप लें। ये दवाइयां ऑलमोस्ट 35 ईयर हिस्ट्री है इन दवाइयों की। दे आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव, they reduce your risk of heart attack or stroke. So if you are the person who's recommended by your physician कि आपको जो है वो ये दवाई लेने की जरूरत है, तो प्लीज इस दवाई को लें और रोजाना लें, स्किप ना करें आपके डोजेस। ठीक है, तो हमने जो है वो ए की बात की, बी की बात की, सी की बात की, सी की बात की। अब मैं सिगरेट स्मोकिंग की बात कर रहा हूँ। हम सब समझते थे कि सिगरेट स्मोकिंग जो है वो अब बहुत कम हो गई है, मगर अब दोबारा जो है वो सिगरेट स्मोकिंग ने, टोबैको प्रोडक्ट्स ने कम बैक किया। और अगेन व्हेन आई से सिगरेट स्मोकिंग आई मीन ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स, इसीलिए मैंने उसे बोल्ड किया हुआ है। देखें, हुक्का बहुत यूज होता है यंग लोगों में। पाकिस्तान में जब भी आता हूँ मैं देखता हूँ आजकल वो हर जगह हुक्का चला हुआ होता है, बिल्कुल फैशन बना हुआ है। रिमेंबर, हुक्का यूज करने के भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिगरेट स्मोकिंग के हैं। वेपिंग के जो ई सिगरेट्स आजकल शुरू हो गई हैं, चूइंग टोबैको जो तंबाकू पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारी साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके भी वही प्रॉब्लम्स हैं। कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है, आपको पता होगा पाकिस्तान में ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है। चूइंग टोबैको इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क। चूइंग टोबैको से हार्ट अटैक का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, अपनी फैमिली में भी लोगों से बात कीजिए कि सारे फॉर्म्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट सिगरेट स्मोकिंग, हर किस्म का टोबैको प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क है हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का और कैंसर का। ठीक है, तो हमने बात की ए, असेस करें अपना रिस्क, एस्पिरिन अगर आपको लेने की ज़रूरत है, जो कि डाटा इतना स्ट्रॉन्ग अब नहीं रहा है। बी इज़ फॉर ब्लड प्रेशर। सी हमने बात की कोलेस्ट्रॉल, सी ऑल्सो स्टैंड्स फॉर सिगरेट स्मोकिंग एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स। डी इज़ फॉर डायबिटीज़। नाउ डायबिटीज़ के लिए मैं आपसे कहूँगा कि एनीवन पाकिस्तानी इंडियन जिसकी एज जो है वो 18 या 20 से ज्यादा है, एवरी ईयर और एवरी 2 to 3 years यू शुड गेट टेस्टेड फॉर डायबिटीज। डायबिटीज का रिस्क हम लोगों के अंदर तकरीबन ट्वाइस ज्यादा है कंपेयर टू दूसरे एथनिक ग्रुप्स के। ओके, याद रखिएगा, डायबिटीज का रिस्क हमारे अंदर ट्वाइस ज्यादा है कंपेयर टू दूसरे एथनिक ग्रुप्स का। और डायबिटीज जो है वो बहुत ही बुरा डिजीज है, जितना जल्दी डायग्नोज हो जाए उतना ही ज्यादा हमें फायदा होगा। तो इसकी वजह से डायबिटीज पे हमें बहुत नज़र रखनी है। बहुत ही बुरा डिजीज है, मगर हमारे कम्युनिटीज के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो मेक श्योर that you get tested for diabetes, because there are a lot of good treatments available now in the past few years that will reduce your risk of a heart attack or stroke even if you have diabetes. So diabetes की complications क्या है? एक आदमी जिसको डायबिटीज अगर आज होता है कंपेयर टू दूसरा आदमी जिसको नहीं हुआ है, जिस आदमी को डायबिटीज हुआ है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 8 साल कम होती है कंपेयर टू अ पर्सन जिसे डायबिटीज नहीं हुआ है। ठीक है, हार्ट डिजीज का रिस्क जिनको डायबिटीज होता है और उससे डेथ का जो रिस्क है 2 to 4 times हायर है जिनको डायबिटीज हुआ है। इन कुछ स्टडीज के अंदर अगर आप एक आदमी को लें जिसको कि आज हार्ट अटैक हुआ है और एक आदमी को लें कि जिसको डायबिटीज आज डायग्नोज हुआ है, दोनों का चांस कि एक दूसरा हार्ट अटैक अगले 5 साल में होगा वो सेम है इन दोनों के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज होना इज इक्वल टू कि किसी को आज हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि इतना रिस्क आपका हार्ट अटैक का बढ़ जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप जरूर अपने आप को टेस्ट करवाएं कि आपको डायबिटीज है या नहीं, और उसके बाद
अपने आप को प्रिवेंट भी करने की कोशिश करें डायबिटीज, और उसके अलावा ट्रीटमेंट जो है उस पर भी आप गौर करें। डायबिटीज की ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस आप सबको पता होगी, लोगों की बीनाई चली जाती है, चीज़ें फील नहीं होती, हार्ट और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, उसके अलावा इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, किडनीज काम करना छोड़ देती हैं। ट्रीटमेंट, डायबिटीज की ट्रीटमेंट ऐसी है कि एक ही स्टडी अब तक दिमाग में आती है, बड़ी स्टडी के, जिसमें लाइफस्टाइल ने मेडिकेशन को भी बीट किया, जिसे हम डीपीपी स्टडी कहते हैं। लोगों ने ऑन एवरेज 5 to 7% अपना बॉडी वेट लूज किया, जिनकी शुगर थोड़ी ज्यादा थी, और अगर हम देखते हैं तो उससे डायबिटीज डेवलप करने का रिस्क 2/3 जो है वो कम हो गया, सिर्फ 5 to 7% बॉडी वेट से, बॉडी वेट लूज करने से। इस वजह से काफी कंट्रोल जो डायबिटीज का है वो हमारे अंदर है। अगर डायबिटीज आपको हो भी जाता है तो आई विल टेल यू कि अगर आप इन दिस डे एंड एज, अगर आप एक सही डॉक्टर को दिखा रहे हैं जो आपकी शुगर्स भी कंट्रोल है, सही मेडिकेशंस, अब ऐसी मेडिकेशंस भी आ गई हैं जो सिर्फ आपकी शुगर लो नहीं करती डायबिटीज में, आपका हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, जो हम कहते हैं हार्ट फेलियर, उन चीज़ों का भी रिस्क बहुत ज़्यादा कम करती हैं। उसके अलावा डायबिटीज आजकल काफ़ी इजीली मैनेजेबल डिजीज़ है अगर आप अपना ख्याल रखें, अगर आप एक अच्छे डाइटिशियन से सही एडवाइस लें कि किस किस्म की आपको खाना खाना है, किस किस्म की दवाइयाँ यूज़ करनी है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस इस वक्त अवेलेबल हैं डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। सो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर डायबिटीज़ नहीं है तो चेक कराएं, डायबिटीज़ है तो उसकी सही ट्रीटमेंट लें आप, ठीक है। डी ऑल्सो स्टैंड्स फॉर डाइट। अगेन अभी एक 2017 में एक बहुत बड़ी स्टडी आई थी कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द डेथ्स, नॉट जस्ट हार्ट डिजीज रिलेटेड डेथ्स, ओवरऑल डेथ्स इन द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू डाइट। और डाइट की हम क्या बात करते हैं, जो हेल्दी डाइट है वो क्या होती है, वो डाइट है कि जिसके अंदर वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ जो मैं मेंशन करूँगा आपको कि अगर आप हफ्ते के अंदर 2 से 3 मरतबा मीट खाते हैं, देखें हमारी डाइट में तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी रोज़ाना भी गोश्त खा रहा होता है, उसको आप 1 से 2 मरतबा रिप्लेस कर दें फिश से। फिश अगर आप रिप्लेस कर देते हैं दूसरे गोश्त से तो आपका रिस्क हार्ट अटैक स्ट्रोक का कम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ खाते हैं तो पूरा जो होल ग्रेन होता है ना, जो आटा जो कि पूरा होल फ्लावर जो होता है, उससे आपका रिस्क कम होगा। नट्स आप अपनी उसमें बढ़ा दें, लिगूम्स बढ़ा दें, ठीक है। अगर अपने उसमें आप दाल जो हमारी हो गई उस किस्म की चीज़ें अगर आप वेजिटेबल्स बढ़ा दें तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। और जो हमारी डाइट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिंपल शुगर्स का, कि हम जो है वो रोटी, वाइट ब्रेड बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम नान बहुत ज़्यादा खाते हैं, चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन चीज़ों को हमें बहुत कम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ है जिसके ऊपर मैं 1-2 मिनट जो है वो स्पेंड करने की कोशिश करूँगा कि एक हेल्दी ईटिंग प्लेट क्या होती है। जब हम अपनी प्लेट बनाते हैं खाने के लिए तो हम इस तरीके से बनाएं, हमारे पेरेंट्स से भी इसके ऊपर बात करें, हमारे बच्चों से भी इस चीज़ के ऊपर बात करें। देखिए किस तरीके से प्लेट होती है, एक कोना उस पे हम फ्रूट्स रखें, एक कोने पे हम वेजिटेबल्स रखें, एक कोने पे हम हेल्दी प्रोटीन रखें, ठीक है। हेल्दी प्रोटीन क्या होती है, फिश हो गया, चिकन हो गया। फिश और चिकन हमेशा बेहतर है कंपेयर टू कि हम जो है वो रेड मीट जो खाते हैं, ठीक है, गाय का गोश्त हो गया या बकरी का गोश्त हो गया, उन चीज़ों से बेटर है कि हम फिश खाएं। और अगर आप हफ्ते में 3-4 मरतबा अगर जो है वो रेड मीट खा रहे हैं तो बेटर है कि उससे आप रिप्लेस कर दें 1 से 2 मरतबा फिश, 1 मरतबा चिकन। तो आप रेड मीट हफ्ते में एक ही बार खाएं, मगर देखें आप पोर्शन साइज नहीं भूलिएगा। और देखें होल ग्रेन्स सिर्फ 1/4 ऑफ द प्लेट है, ऐसा नहीं है कि पूरी प्लेट जो है वो चावलों से भरी हुई है और उसके ऊपर जो है वो कोरमा और चिकन और जो अगर गोश्त है तो गोश्त ऊपर से डाला हुआ है। देखें इस तरीके से प्लेट नहीं बनती, प्लेट जिस तरह बनी हुई है उस तरीके से बनती है। एक कोने पे वेजिटेबल्स डालें, एक कोने पे फ्रूट डालें, एक कोने पे आप जो है वो एक सर्विंग जो होती है उसकी वो डालें, 2-3 पीस गोश्त के, उससे ज्यादा नहीं डालने। और एक कोने पे 1 या 2 ब्रेड या आधा नान आपका जो हुआ उसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। साथ में काफी सारा पानी पिए आप, जितना आप पानी पिएंगे खाने के साथ उतना आप खाना कम खाएंगे। एक बड़ी ये अजीब सी जो है वो हमारे यहाँ है कि खाने के साथ अगर पानी पीऊंगा या पानी पीऊंगी तो मोटापा ज्यादा हो जाएगा। इसका इसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट इट्स द अदर वे अराउंड। ऐसा नहीं होता कि पानी आप ज्यादा पिएंगे तो जो है वो चावल अंदर जाके फूल जाएंगे और आपको मोटापा होगा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसी ये बिल्कुल गलत बात है।
जितना आप पानी पिएंगे उतना आप खाना कम खाएंगे, क्योंकि आपको सुकून मिलेगा, आपका पेट जो है उसे लगेगा कि खाना आ रहा है जबकि पानी आ रहा है, तो आप खाना थोड़ा कम खाएंगे। तो पानी जितना पी सकते हैं दिन में भी पिए और खाने के साथ भी पिए। जूस आप ना पिए, ठीक है, जो एप्पल जूस होता है, ऑरेंज जूस होता है, ये भी एक बड़ी जो है वो मिस परसेप्शन है हमारी कम्युनिटी के अंदर कि जूसेस तो बहुत ज्यादा जो है वो हेल्दी होते हैं। नहीं, अगर आपको खाना है तो आप एक एप्पल खाएं, एक ऑरेंज खाएं। जूस आप पिएंगे तो उसमें सिंपल शुगर्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से हमें हमारी प्लेट बनानी है। और हेल्दी ऑयल्स होते हैं जो कि ऑलिव और कनोला ऑयल होते हैं, उन्हें हम हमारी कुकिंग में भी यूज करें। हमारी जो जो लोग हमारी इस कॉल पे हैं जो कि खाना बनाते हैं, याद रखिएगा रीहीट ना करें। पाकिस्तान में, इंडिया में, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में भी लोग रीहीट करते हैं। वही ऑयल जो तवे पे होता है उसी को दोबारा बार बार चीजों को उसी में गर्म किया जाता है। जब आप ऑयल को रीहीट करते हैं तो उसके अंदर कार्सिनोजेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं, और जिन चीजों का हार्ट डिजीज और होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उसमें। तो ऑयल एक मरतबा यूज करके डिस्कार्ड कर दें, बार बार उसे यूज ना करें। दैट्स वन ऑफ द रीजंस के जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में निम्को बनते हैं, उन्हें बार बार वही ऑयल में रीहीट करके किया जाता है। उसकी वजह से भी हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर का भी रिस्क एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया है इस हेल्दी प्लेट के ऊपर। कोशिश करें कि आप जितना इस प्लेट के ऊपर आ सकें जल्दी, उतना आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। याद रखिएगा कि 4 चीजें हैं इस प्लेट के अंदर, कोई एक चीज नहीं है। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, और हेल्दी प्रोटीन है, और साथ में जितना हो सके पानी पीना है, जूस जो है वो अवॉइड करना है, और हमें हमारे खाने के लिए हेल्दी ऑयल्स यूज करने हैं। तो अब हमने बात की डाइट के हवाले से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। अब आप देखेंगे कि मैंने एक्सरसाइज की बजाय फिजिकल एक्टिविटी डाल दिया है। अब जो आप हमने जो नई अभी गाइडलाइंस यूएस के लिए लिखी थी 2019 में, उसमें भी हमने जो वर्ड यूज किया वो फिजिकल एक्टिविटी किया। क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज का वर्ड यूज करते हो, लोग समझते हैं मैं तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, ना कर सकती हूँ, तो मैं जो है वो अब जो है वो ना करूँ वही अच्छा है। आप देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी अगर आप 150 मिनट्स अ वीक टोटल अक्यूमुलेटेड, अगर आप 5 से 10 मिनट भी करते हैं और फिर 2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट करते हैं, इट इज ऑल एडिटिव। अगर आप इस किस्म की जॉब कर रहे हैं कि आप पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, हर 2 घंटे पे आप ब्रेक लें, 5 से 10 मिनट वॉक कर लें, वो 5 से 10 मिनट भी ये 150 मिनट्स में काउंट होंगे, ठीक है। अगर आप देखें कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का बेनिफिट, ये देखें कितना ज्यादा स्टीप कर्व है। क्योंकि आप सारे प्रोफेशनल्स हैं, आप देखेंगे कि 150 मिनट्स तक देखें। अगर आप बहुत ज्यादा सेडेंट्री हैं, अगर आप बैठे रहते हैं पूरा दिन, देखें कितना ज्यादा बेनिफिट है ऑन दिस पार्ट ऑफ द कर्व। फिर बेनिफिट रहता है मगर कम हो जाता है, ठीक है। 300 मिनट्स पर वीक अगर आप देखो, उसके बाद बेनिफिट बहुत कम हो जाता है। मगर आप देखें कि इस कर्व कितना स्टीप है फ्रॉम 0 to 150, तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। एनी काइंड ऑफ वॉकिंग हेल्प्स। और मैं आपको कहूंगा, अगर आप कहीं काम करते हैं, अगर आप पार्किंग थोड़ा दूर कर सकें, कोशिश ना करें कि बिल्कुल जो आपके बराबर में पार्किंग ढूंढें, थोड़ी दूर ढूंढें ताकि आप वॉक कर सकें। अगर आपकी ऑफिस तीसरे या चौथे फ्लोर पर है, स्टेयर्स ले लें बजाय इसके कि आप एलिवेटर्स लें। और एवरी आवर और 2 आवर्स टेक अ 5 to 10 मिनट ब्रेक, उसमें आप वॉक कर लें। आपका लंच ब्रेक अगर आप लेते हैं तो उस दौरान भी वॉक कर लें 10-15 मिनट, तो आप आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके हफ्ते के 150 मिनट आप ले लेंगे। जबकि अगर आप 300 तक जाते हैं तो और भी ज्यादा फायदा है। मगर एटलीस्ट कोशिश करें 150 मिनट्स का। और याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको कर्व बताया था कि सबसे ज्यादा बेनिफिट शुरू में आपको बहुत ज्यादा होगा। तो आप में से वो लोग जो कि जरा भी वॉक वगैरह नहीं करते, देर इज अ लॉट टू गेन इन दिस पार्ट ऑफ द कर्व। सो कोशिश करें कि फिजिकल एक्टिविटी करें। मैं ये स्लाइड यहाँ पे अक्सर रखता हूँ कि पर्सपेक्टिव बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, ठीक है। ये 24 आवर फिटनेस में जा रहे हैं, मगर देखें किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। तो अगेन कोशिश कीजिएगा कि जहाँ भी हो सके स्टेयर्स लें, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जॉब पे जाते हैं तो ये 10 टॉप टिप्स हैं जो कि क्या है कि अगर आप जो है वो मील का आपका रूटीन होना चाहिए। हमारा मसला, मैं खुद इन चीज़ों से सफ़र करता हूँ कि हम हमारी मील जो है वो बड़ी डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे पे रहते हैं। रात की हमारी मील सबसे बड़ी मील होती है, जबकि सबसे छोटी मील होनी चाहिए। और बहुत लेट खाना खाते हैं, तो जल्दी खाना खा लें शाम में, एक ही टाइम पे खाएं,
ठीक है, रिड्यूस फैट ऑप्शंस जो होते हैं वो लें। 10,000 स्टेप्स पर डे इज अ गुड हैबिट टू हैव। अगेन वो आपको 150-200 मिनट आराम से उससे मिल जाएंगे। अगेन बजाय इसके कि आप जो है वो बिस्किट खाएं या जो है वो चिप्स खाएं या जूस पिएं, उससे बेटर है कि आप एक केला खा लें या एक एप्पल खा लें, एक सेब खा लें। लेबल्स पढ़ें। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं। लेबल्स आप रीड करें, आपको आइडिया हो जाएगी कि आपको क्या खाने की जरूरत है, क्या नहीं खाने की जरूरत है। अगेन पोर्शंस को कंट्रोल करें। कहाँ पे मसला होता है हमें पोर्शन कंट्रोल में? हमें पोर्शन कंट्रोल में मसला होता है जब हम चावल ले रहे होते हैं। चावल, इतने चावल जो हैं वो एक पोर्शन होता है। पूरी प्लेट चावल से भर देना इज नॉट अ पोर्शन, दैट्स 3 or 4 portions of राइस, दैट विल मेक यू वेरी वेरी ओबीस। आपकी शुगर्स बहुत बढ़ जाएंगी। इसी तरह नान, हम एक वक्त नान खाना शुरू करते हैं तो 3-4 नान खा जाते हैं, वो एक सर्विंग साइज नहीं है। ठीक है, अगेन हमने बात की अपॉन योर फीट, ब्रेक अप योर सिटिंग टाइम। हमने इसकी बात की कि छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जितना पानी आप ज़्यादा पी सकते हैं पिएं। कोशिश करें फ्रूट जूस और उन चीज़ों को अवॉइड करने की। जब खाना खा रहे हैं तो आराम से बैठकर खाएं। कोशिश करें खाना खाते हुए टीवी ना देखें, क्योंकि स्टडीज ने शो किया है कि जो लोग खाना खाते हुए टीवी देख रहे होते हैं या जल्दी जल्दी खाना खाते हैं वो और ज़्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि अगर आप अपने खाने पे फोकस नहीं करेंगे यू विल जस्ट कीप ईटिंग। आराम आराम से अगर आप खाना खाएंगे और अपने खाने को देखते हुए खाना खाएंगे तो हमारे जो हमारा पेट है वो हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है। जितना आप स्लोली खाएंगे तो पेट वो सिग्नल्स भेजता है हमारे ब्रेन को, जो हम कहते हैं ना कि सटाइटी के सिग्नल्स, कि भाई इसने खाना इनफ खा लिया है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे, टीवी देखते हुए खाएंगे, तो वो सिग्नल्स आपका ब्रेन जो है वो रजिस्टर ही नहीं करेगा और यू विल एंड अप ईटिंग मोर। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फूड व्हेन यू आर ईटिंग। Try not to watch TV or be distracted looking at your phone where you're eating. You will always end up eating more. And again, जो हम कहते हैं ना कि 5 a day वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, कोशिश करें उसे जरूर खाएं। चाहे वो फिर चने हो गए, चाहे वो दाल हो गई, चाहे वो फिर एक फ्रूट हो गया, चाहे वो शलजम हो गया, चाहे क्यूकम्बर हो गया, जो भी आपको पसंद है स्लोली बट श्योरली उसे यूज करें। जो मैंने आपको प्लेट दिखाई थी कि उसके 4 पोर्शन हमें बनाने हैं। ठीक है, काफ़ी सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आप देख सकते हैं। मेयो क्लिनिक अगर आप करें वो उनके पास काफ़ी अच्छी जो है वो रिसोर्सेज हैं। myplate.gov पे आप जाएं तो ये जो मैंने आपको प्लेट दिखाई थी वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की वेबसाइट है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आई बिलोंग टू द आगा खान कम्युनिटी, हमारी भी वेबसाइट है जिसपे पूरी साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में जो है क्या क्या सवालात हो सकते हैं उनके जवाबात हैं। मैंने वो यहाँ वेबसाइट पुल की हुई थी, मैं देखता हूँ अगर आपसे शेयर कर सकूँ। ये वेबसाइट शेयर कर सकूँ, यहाँ पे भी आपको जो है बिल्कुल जो है वो सवालात के जवाब मिल जाएंगे। इट्स कॉल्ड akhbd.smileyusa.org। देखें यहाँ पे आप अगर जाते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो 7 steps to your health, what should I do if I go to my doctor। अगर आप क्लिक करेंगे हार्ट डिजीज के ऊपर तो उससे रिलेटेड आपके जो सारे सवाल हैं बिल्कुल साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में, कि उसकी हार्ट अटैक की साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, कैसे डायग्नोज होते हैं, क्या उसकी साइंस और सिम्टम्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किस तरीके से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि जो हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें अपना रिस्क हार्ट अटैक और स्ट्रोक का प्रिवेंट करना है। और मैं आपसे एक लास्ट चीज़ पूछूंगा और आप सबकी जो है वो तवज्जो चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इफ़ देर आर 3 birds sitting on a branch of a tree and 2 of them decide to take off, how many are left? अगर किसी दरख्त की एक शाख के ऊपर 3 परिंदे बैठे हुए हैं और उनमें से 2 जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमें अब उड़ जाना है, तो उस शाख पे कितने परिंदे रह गए? अगेन मेरा जवाब तो हमेशा होता है कि एक परिंदा रह गया, क्योंकि 2 ने डिसाइड किया कि दे आर गोइंग टू टेक ऑफ। द करेक्ट आंसर इज कि देर आर स्टिल 3 birds left on that branch of the tree. You know why? Because 2 of them decided that they will take off, but they never took off. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बात है। आज हमने जो बात की है आपको शायद एक बात उसमें से अच्छी लगी होगी, 2 बात अच्छी लगी होगी, मगर अगर आप सिर्फ उस चीज के बारे में अच्छा फील करेंगे अगले आधे घंटे के लिए और वो चेंज नहीं करेंगे अपनी फैमिली में या आपके अपने लिए,
तो मेरी ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप भी उसी बर्ड की तरह हैं कि जिसने सोचा था कि वो उड़ेगा या उड़ेगी, मगर वो कभी भी उड़ नहीं पाया, क्योंकि सिर्फ सोचते ही रह गया, एनालिसिस पैरालिसिस मोड में ही रह गया। ठीक है, तो मेरा टेक होम मैसेजेस आपके लिए ये हैं कि NCDs आर डेडली। As outpatients, we are at a higher risk of not just heart attacks and strokes, but premature heart attacks and strokes and diabetes compared to any other ethnic groups. But NCDs, heart attacks, strokes, diabetes, they are preventable and they can be treated if diagnosed early. याद रखिएगा ABCDE जो हमने बात की, उससे आपको इजी रहेगा कि आप अपने बारे में भी सोच सकें, अपनी फैमिली के बारे में भी सोच सकें। A to assess risk, B for blood pressure, C for cholesterol, C is also for cigarette smoking and tobacco products, D is for diabetes, D is for diet, and E is for exercise or physical activity. Remember, any physical activity helps. And again, pick one thing that you learned today and make it actionable. Convert your goal into an actionable plan. Ask yourself कि अगर मुझे अपनी physical activity 150 minutes तक लेके जानी है, तो मेरे लिए क्या चीज जरूरी है, मेरे सर्कमस्टांसिस में मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं कि जिसकी वजह से मैं 150 मिनट्स पर वीक अपने जो गोल है उस तक पहुंच सकूं। वो आपको ही पता है, यू आर ऑल प्रोफेशनल्स, यू कैन डू इट बेटर देन एनीबॉडी एल्स। बी द बर्ड दैट एक्चुअली टुक ऑफ। ठीक है, डोंट बी द बर्ड्स दैट स्टिल सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ टुमारो। तो मैं I'll basically end with this proverb. The secret to living well and longer is eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. Again, this summarizes a lot of good principles in life. I'll repeat it. The secret to living well and longer is eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. With that, I thank you all कि आप लोगों ने मुझे opportunity दी कि मैं आप लोगों से आके बात कर सकूं. I think we have a few minutes and we can take any questions during that time. Well, thank you very much, Dr. Virani. मेरा ख्याल है कि I am so relieved after this session कि मुझे ये नहीं पता था कि ये session कितना easy to understand होगा, क्योंकि you living there for last 16 years और कैसे communicate करेंगे, लेकिन I'm so happy about it that it was so simple and so easy for everyone to understand, and I'm sure that everybody on the audience would have felt the same thing. That there could not be anything easier than this thing. So thank you very much, Dr. Virani, first of all. Hello? जी. Hello? जी, Dr. Are you hearing me? Are you hearing me? जी. Acha. So on behalf of the Mehmet Professional Forum, whoever is available on the net at this time, thank you, expressing my thanks to Dr. Virani. Now, there are a few questions that I will like to start with. The first question that I'll ask you कि Dr. Virani मुझे ये बताएं कि डीन जॉन्स क्यों मरा था? देखिए, मुझे जितना पता है आप लोगों को ज्यादा पता होगा, मैं भी IPL फॉलो करता हूँ, मगर जो मुझे जितना समझ आया था कि he basically had some chest pain, he was ignoring it for a few hours and then he basically suddenly collapsed in his hotel room. तो वो जो मैं आपको कह रहा था, But why I'm asking is that he was like one of the most active person. He was on the jogging schedule. He was maintaining his diet. He was like a sportsman. And जब इस तरह के events होते हैं कि इस तरह के आदमी चलते फिरते और बड़े the fittest of all, अगर वो sudden cardiac arrest में death हो जाए तो फिर बड़ा demoralizing होता है बाकी अवाम के लिए भी कि यार हम walk करके क्या achieve कर लेंगे. देखिए, मैं दो चीजें इसके बारे में कहूंगा डॉक्टर शोएब। पहली ये कि वी डोंट नो कि इन हिज पर्सनल लाइफ व्हाट ही वाज डूइंग, राइट? वी सी डीन जोन्स पर्सोना एज अ ग्रेट क्रिकेटर, एज अ ग्रेट कमेंटेटर। हमें नहीं पता कि वो बेचारा पीछे उसकी लाइफ में कितना जो है वो रिस्क फैक्टर्स क्या थे, व्हाट डिड ही हैव, हाउ वाज ही मैनेजिंग हिज डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो एक तो मैं ये कहूंगा, ठीक है, हमें कभी भी पता नहीं होता। दूसरी बात ये कि देखिए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। If you do these things, your probability of having a heart attack or stroke goes down tremendously. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बहुत हेल्दी लोग होते हैं उनको भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक नहीं होते।
probability goes down appreciably. That is what we know. The other thing about Dean Jones, देखिए उसको symptoms हो रही थी कुछ घंटों से, मगर ही जस्ट इग्नोर्ड दो सिम्टम्स, जो कि काफी कॉमन है हमारी कम्युनिटी में भी बहुत होता है। लोगों को चेस्ट पेन हो रहा होता है, कहते हैं नहीं नहीं मेरा जो है वो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, मुझे ये मैंने कुछ खा लिया होगा उसकी वजह से हो गया है। तो इसी वजह से जो मैं आपको कह रहा था कि काफी सारे लोग बेचारे हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं सकते, पहले ही डेथ हो जाती है। डीन जोन्स इज वन ऑफ देम। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने इस चीज से बात नहीं की ज्यादा, लेकिन हमें प्री हॉस्पिटल डिलेज भी कम करने की जरूरत है। वो कहना टाइम इज मसल। इतनी ज्यादा अब अच्छी थेरेपीज डेवलप हो गई हैं कि अगर आप टाइम पे पहुंच जाए हॉस्पिटल में, अगर आपको जिसका हार्ट अटैक हो रहा है तो आपका काफी सारा हार्ट का जो मसल है उसे सेव किया जा सकता है अगर आर्टरी को जल्दी ओपन कर दिया जाए। तो घर पे बहुत देर बैठना जब आपको ये सिम्टम्स हो रही हो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। पहले तो ये कि बहुत लोग घर पे ही उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा ये कि अगर आपको सैल्वेज किया भी गया हॉस्पिटल में तो आपका हार्ट का जितना पार्ट सैल्वेज किया जा सकता है वो भी कम हो जाएगा विद एवरी मिनट के जो आप घर पे बैठे हुए। तो बहुत जरूरी है कि सीख करें केयर जल्दी से। मगर गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो जो मैंने आपको दो चीजें कही डॉक्टर शुएब की, हमें नहीं पता कि प्राइवेट लाइफ में वो बेचारे की डाइट कैसी थी, उसे क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, वो सही तरह ट्रीटेड थे या नहीं ट्रीटेड थे। एंड उसके अलावा जो मैंने कहा कि वो सारे रिस्क फैक्टर्स भी कंट्रोल हो। सो इट्स अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। देयर आर ऑलवेज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, देयर आर जेनेटिक्स एज वेल that come to play in all this. And I don't think we have enough information for Dean Jones to say what were the reasons that could have led Okay. to the outcome that wish it would not have happened. Acha. I have a question here. मिस फौजिया मेमन ने यहाँ पूछा है कि बीपी की टैबलेट डेली लेते हैं बट टाइमिंग चेंज हो जाता है, क्या इसका इफेक्ट होता है? जनरली स्पीकिंग देखें, एक स्टडी आज से 1 साल पहले आई थी जो कि हम में से बहुत सारे लोग उसको बिलीव नहीं करते कि अगर रात को आप ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन लो तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है कंपेयर टू अगर आप सुबह में लो। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि जिस वक्त आपको याद रहता है, अगर आपके लिए आपके स्केड्यूल के हिसाब से कि आप उस किस्म के पर्सन हो कि अगर आप सुबह ले लो और रोज़ाना तो आपको याद है तो सुबह में लो। मसला ये है कि जब आप दवाई एक दिन सुबह में लेते हो, एक दिन शाम में लेते हो, फिर दूसरे दिन सुबह में लेते हो, तो जो स्टेडी स्टेट है ना वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है दवाई की। व्हाट यू वांट इज जस्ट ए स्ट्रेट लाइन के जो कॉन्सेंट्रेशन ड्रग की जो आपकी ब्लड में है वो सेम रहे। सो एडवाइजेबल जो है वो ये है कि आप एक ही वक्त लो, चाहे वो सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो या शाम का टाइम हो आपके लिए। मगर आप कोशिश ज़रूर करें कि एक ही वक्त में आप दवाई लें अपनी। तो मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि आप एक ही वक्त दवाई लें, जो भी टाइम आपको याद रहे, मगर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि उससे फिर दवाई ऊपर नीचे होती है, आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और ब्लड प्रेशर एज इज काफ़ी वेरी करता है ड्यूरिंग द डे नॉर्मली भी एक आदमी के अंदर। तो वो क्या वेरिएशन आपकी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपकी दवाई के डोज डिफरेंट टाइम्स पे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जो भी टाइम आपके लिए सूट करता है आप डिसाइड कर लें, मगर एक ही टाइम पे। अच्छा भाई, आपके तवज्जो से मैं एक एडवाइस आगे फॉरवर्ड करना चाहूँगा सारे ऑडियंस के लिए कि देखें, अभी हमने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन अटेंड किया है। जो लोग अपने कोलेस्ट्रॉल और शुगर्स को मॉनिटर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं मॉनिटर करते हैं, आज सैटरडे नाइट है, कल संडे मॉर्निंग है, और संडे मॉर्निंग हमारे लिए जाके इन्वेस्टिगेशंस करवाना बहुत आसान होता है। डॉक्टर वीरानी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के कोलेस्ट्रॉल की चेक के लिए हमें 12 आवर्स फास्टिंग चाहिए होती है लिपिड के लिए। एम आई राइट? जी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर शोएब। जी डॉक्टर शोएब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी आ रही है जी। देखिए जी तो मैं बहुत कंफ्यूज करूँगा हमारे ऑडियंस को, लेकिन बेसिकली आज से 3-4 साल पहले तक अगर हम गाइडलाइंस को देखें तो हम यही कहते थे कि जो है ना, अगर आप कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करा रहे हैं तो 12 घंटे का फास्टिंग ज़रूरी है। अब हम कहते हैं कि फास्टिंग या नॉन फास्टिंग सैंपल दोनों चल जाएंगे, एज लॉन्ग एज के आपके ट्राइग्लिसराइड, उसमें जो मैंने बताया ना एक किस्म का फैट होता है वो 400 से कम हो, जो कि मोस्टली लोगों का होता है। तो अब हम कहते हैं कि नॉन फास्टिंग, एटलीस्ट यूएस में तो हम कहते हैं कि नॉन फास्टिंग भी चल जाएगा। मुझे पता है शायद पाकिस्तान में अभी भी लोग
कहते होंगे कि सिर्फ फास्टिंग करें, तो आई थिंक आपके डॉक्टर से आप पूछ लें कि वो क्या रेकमेंड करेंगे, बट जनरली बेस्ड ऑन साइंस एट दिस पॉइंट both fasting and non-fasting measurement of cholesterol are reliable, but talk to your doctor ताकि आपके डॉक्टर कंफर्टेबल हो उस अप्रोच के साथ। दोनों जो है वो काम करते नहीं हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को कि वो फास्टिंग करवाएं? टॉकिंग अबाउट लाइक बुकिश गाइडलाइन क्या सजेस्ट करती हैं? गाइडलाइन सजेस्ट करती हैं कि दोनों इक्वली गुड हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन। ऑलराइट, ओके ओके। और तो मैम मेरी बात अधूरी रह गई थी कि जिन लोगों ने अपने कोलेस्ट्रॉल चेक करवाए हुए हैं वो अच्छी बात है, और नहीं करवाएं तो कल संडे मॉर्निंग जाके अभी नॉलेज बिल्कुल फ्रेश है, जाके अपने लिपिड प्रोफाइल और हीमोग्लोबिन A1C HbA1c जो कि शुगर के लिए 24 आवर्स का सैंपल लाइक फॉर लास्ट 3 मंथ्स का आपको एक रफ आइडिया बता देता है। ये ज़रूर चेक करवाएं जब भी पॉसिबल हो आपके लिए। हेलो जी जी डॉक्टर मिठानी। हेलो जी जी शुएब भाई। कैरी ऑन डॉक्टर मिठानी। जी मैंने सिर्फ ये सजेशन दी थी कि आप ज़रूर इस बात को मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा था ऑडियंस के लिए कि जिन लोगों ने अभी तक अपने कोलेस्ट्रॉल या शुगर नहीं करवाया वो ज़रूर चेक करवा लें। अगर पॉसिबल हो तो कल सुबह ही चेक करवाएं वो। ठीक है डॉक्टर मिठानी। अच्छा, हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो वो ही और शी कैन रेज द हैंड्स ताकि वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ डॉक्टर वीरानी इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिफ पूछना चाह रहे जी जी। हैं। एनी क्वेश्चंस प्लीज? जी आसिफ, आई थिंक उन्होंने अपना वो रेज हैंड का वो साइन दिया है। आई थिंक अगर आसिफ को कोई अनम्यूट कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ जी। Dr. Saab, excellent presentation. Glad to see you and a very good presentation. I'm at Islamabad airport, but this was so good that I am attending. He was asking for my ticket and I was listening to you. Dr. Saab, how many kilometers or steps do you recommend we should walk or do the jogging every day? जी Can you please अच्छा, guideline? बहुत अच्छा सवाल। जी And, It's a good and hi question. to all the professionals as well, including Shoaib Mithani. ठीक है, तो आसिफ जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इट्स अ गुड क्वेश्चन कि कितने And जो plus, है वो Dr. Saab, you are famous. You are very famous at the Islamabad airport as well. Everybody was asking what you are listening. हाँ ओके। You can see it. You can see the beautiful airport as well. Yes, sir. जी इट्स अ वेरी गुड एयरपोर्ट। जी इसकी जो है वो सवाल ये था कि कितने जो है वो स्टेप्स या किलोमीटर्स जो है वो रोजाना चलना ज़रूरी है। जी एक जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि 10,000 स्टेप्स अ डे आप यूज़ करें। ठीक है, 10,000 स्टेप्स अ डे का मतलब ये होता है तकरीबन एक एवरेज आदमी के लिए, वेरी करता है हर एक के लिए, तकरीबन 2000 स्टेप जो हैं वो 1 माइल के बराबर होते हैं, 1 मील के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 4 से 5 रोजाना चलना। मगर अच्छी बात यह है कि अगर आप 3 से 4,000 स्टेप्स भी रोजाना नॉर्मली अभी चल रहे हैं और आप उसको 4 से 5,000 भी कर दें, 20% इंक्रीज कर दें, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो 10,000 steps is a good goal. There is nothing magical about 10,000. It was a marketing ploy in 1950 by a Japanese company. It's just become one of those things that's carried on कि 10,000 steps रोजाना लें तो अच्छी बात है। So what I would recommend is कि अगर आप तो सारे प्रोफेशनल देखें, जैसे मैंने ये एक पेडोमीटर अपने हाथ पे लगाया हुआ है, ठीक है, तो मैं रोजाना देखता हूँ कि मेरे कितने स्टेप्स हैं। अगर आप लगाते हैं, समझे कि आप 5,000 स्टेप्स रोजाना लेते हैं, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट अगले 2 हफ्ते के लिए आप अपने नंबर ऑफ स्टेप्स कहें कि मैं रोजाना के 5,000 से 6,000 कर दूंगा। और अगर एवरी 1,000 स्टेप्स जो आपको लेने होते हैं, तकरीबन आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा वॉक करना पड़ता है। ठीक है तो अगर आपने हफ्ते में हर रोज 10 मिनट एक्स्ट्रा वॉक किया कि आपको 5 से 6,000 जाना है,
तो आपकी ऑलरेडी फिजिकल एक्टिविटी 60 मिनट्स तो एक्स्ट्रा हो गई जो हो रही थी उससे, ठीक है। बिल्कुल सही, फिर आप 6,000 की बात करें, ठीक है, अब मैं 6,500 तक जाऊंगा तो या बिल्कुल जाऊंगी। सही, उससे फायदा ये होता है कि आप ऑलरेडी उस फेज में आ गए हैं कि आपकी बॉडी को, वो जो मैं बात कर रहा था फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से, कि वो 0 से 150 तक जो सबसे ज्यादा फायदा होता है, आप उस कर्व के स्टीपेस्ट पोर्शन पे हो जहाँ आपको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो बिल्कुल सही। दैट इज हाउ आई लुक एट फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि 4,000 पे हैं तो हम 10,000 पे 2 दिन में चले जाएं, आराम आराम से भी हम उसे बढ़ा सकते एग्री। हैं। और 10,000 तक ना भी पहुंचे तो कोई मसला नहीं है, अगर हम 7,000 तक भी पहुंच गए तो वो 4,000 या 5,000 जहाँ पर हम थे उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। As Shoaib Mithani recommend that we should check the cholesterol, I would recommend that everybody we should have this Fitbit sort of watches or any sort of belt, which gives you a target of initially starting from 3,000 or 2,000, then going on to 10,000 or 15,000. When you have objective or we have targets, we can achieve the same. हमारे पास MPF के पास थोड़ा सा लिमिट बजट कॉन्स्टेंट है, अदरवाइज हम सारे मेंबर को भेज देते क्योंकि हम तो मेंबरशिप की फीस भी नहीं लेते। उम्मीद है कि शोएब भाई इस बार वो इम्प्लीमेंट भी कर देंगे 2-3 महीने बाद इंशाल्लाह। जी। और अच्छी बात ये है कि आप सारे प्रोफेशनल्स हैं, सो यू ऑल आर वेरी गोल ओरिएंटेड पीपल। तो हम प्रोफेशनल्स हमेशा नंबर्स में ही बात कर रहे होते हैं, जिस किस्म के भी प्रोफेशनल हो। So it's easier for you to follow these numbers as well compared to an average person, and you can set goals, and I'm sure you can meet them as well. So आपको डॉक्टर साहब सुनते देखते रहेंगे तो हर 5 महीने बाद तो हमें भी फिर बूस्टर मिलता रहेगा। Definitely. Thank you, Asif bhai, for the participations. Thank you, sir. Anybody else who would like to raise any questions? Good work, Shoaib bhai. Good starting. Wish you all the best. I'll take a leave. Thank you. Thank you, Asif bhai. Thank you for joining. Thank you. डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। चेस्ट पेन के हवाले से समटाइम कंफ्यूजन रहती है, समटाइम हार्ट का पेन है या मस्कुलर पेन है, वहां पर ये कंफ्यूजन रहती है। इस पे क्या डायरेक्शन होगी आपकी कि हाउ वी डिफरेंशिएट द हार्ट पेन एंड द मस्कुलर पेन? आई थिंक आपने भाई जो सवाल पूछा है वही सवाल एक पार्टिसिपेंट तो इसका जवाब दूंगा कि देखें, जो हार्ट अटैक की जो सिम्टम्स कॉमनली होती हैं वो चेस्ट, जो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे पेन होता है, प्रेशर के जैसा होता है कि जैसे कोई आपके सीने पे बैठा हुआ है। यूजुअली जो है वो आपके लेफ्ट आर्म की तरफ या आपकी नेक की तरफ जा रहा होता है। स्पेशली अगर ये आपको चलते हुए हो रहा है, साथ में अगर आपको पसीना आ रहा है या साथ में आपका सांस फूल रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं जो सजेस्टिव होती हैं कि हार्ट का पेन है ये। मगर मैं यहाँ पे वार्न करूँगा कि आप खुद से अपने आप को डायग्नोस करने की कोशिश ना करें। जो हमें पता है वो ये कि स्पेशली औरतों के अंदर एटिपिकल सिम्टम्स भी हो सकती हैं कि राइट साइड पे पेन हो रहा है, मगर इट मे बी हार्ट अटैक रिलेटेड पेन, इट मे बी जस्ट के दे हैव सम पेन यहाँ स्टमक के एरिया में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, उन चीज़ों को आप जो है वो आपके हार्ट के डॉक्टर के साथ या आपके रेगुलर डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करें। काफ़ी सारे तरीके हैं इन चीज़ों को डायग्नोस करने के। ईकेजी एक तरीका है, मगर उसके अलावा ज़रूरी है यूजुअली जनरली अगर आपको इस किस्म की सिम्टम्स हैं तो एक स्ट्रेस टेस्ट चाहिए होता है, तो उस तरीके से डायग्नोस किया जाता है। सवाल किसी ने अभी पूछा कि जो है वो हाई हार्ट बीट जो है वो या साइन है हार्ट इशू की। yes, it may be related to a heart condition. It doesn't always mean कि अगर आपकी हार्ट बीट ज़्यादा है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। हाई हार्ट बीट can be due to very many other conditions from the heart and outside the heart. It means that it needs to be evaluated. It doesn't necessarily mean कि हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है। It can be related to very many other things. So going back to the symptoms, जो मैंने आपको symptoms बताई, प्रेशर टाइप की, चेस्ट में प्रेशर हो रहा है लेफ्ट साइड पे, हाथ की तरफ जा रहा है, नेक की तरफ जा रहा है, स्पेशली जब आप चलते हैं तो और ज़्यादा हो रहा है, सांस फूल रहा है साथ में, और उसके अलावा जो है वो आप जो है वो आपको पसीना बहुत आ रहा है, तो दैट इज़ वेरी सजेस्टिव। मगर अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो रही हैं जो कि आपको पहले नहीं होती थी, जो ज़रा भी सजेस्टिव हो सकती हैं, तो ज़रूर आप डॉक्टर्स को दिखाएं। और क्वेश्चन आया था कि ये डाइजेस्टिव इश्यूज और हार्ट के इश्यूज रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड नहीं है, मगर हार्ट का एक पोर्शन है जो आपके पेट के बिल्कुल ऊपर होता है,
वहां पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि ये पेट का मसला है या हार्ट का मसला है, इसलिए आपको डॉक्टर की जरूरत है, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा कि डॉक्टर गूगल के पास आप ना जाएं, आप रियल डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि काफ़ी मरतबा लोग क्या होता है गूगल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि डॉक्टर गूगल जो है वो मेडिकल स्कूल नहीं गए थे। तो उसकी वजह से आप ना करें, बल्कि सही डॉक्टर के पास जाएं जो कि आपको डायग्नोज भी कर सके और आपको समझा भी सकें कि हो क्या रहा है। और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो आप बड़ी एक सिंपल कॉन्वर्सेशन में भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके डॉक्टर्स के साथ, ताकि आपको समझा सकें कि अगर कोई टेस्ट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह, उससे फ़ायदा क्या होगा। डॉक्टर शोएब। जी डॉक्टर मिथानी, any other questions, any comments coming from participants? नहीं, चलें, तो in the end I'll formally thank Dr. Virani once again. मेरा एक बहुत मुझे पिछले एक हफ्ते से इस बात का स्ट्रेस था कि पता नहीं हमारा कम्युनिकेशन लेवल कैसा रहेगा between while he has never been in Pakistan as far as the professional career is concerned. Am I right, Dr. Salim? जी। Am I right? आपने यहाँ ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान में काम तो कभी भी नहीं किया? नहीं, मैं हर साल आता हूँ, आगा खान अस्पताल में काफ़ी काम करता हूँ। तो अच्छा, तो खैर, तो एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ की जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप हमें उन चीज़ों को इन्वॉल्व करके डिस्कस करेंगे, which I am so glad about it, कि आपने वो लोकल स्टैंडर्ड्स को यूटिलाइज किया और लोकल टर्म्स को यूज़ किया। आई एम श्योर कि सारे लोग जिन्होंने अटेंड किया उनको इस सेशन के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है और बहुत ही प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन मिली है। Very useful hour that we have spent in last 60 minutes. So I will formally thank you, Dr. Virani, on behalf of the MPF, and especially from our president, Shoaib Ibrahim Saab. Or inshallah, in future we will keep in touch with you. Our members keep on sometime bothering you for your expert opinions. इसके अलावा अगर आप कभी पॉसिबल हो सके, अगर 6 महीने साल में एक आध दफ़े दोबारा से किसी वक्त हम आपको बॉदर करें तो प्लीज डू एक्सेप्ट आवर इनविटेशन। इंशाल्लाह, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू शोएब भाई फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल। इंशाल्लाह काफ़ी इन्वॉल्व ऑडियंस रही हैं, तो थैंक यू एवरीवन। It's always good to come back and talk to our community. So thank you very much. Thank you, Dr. Virani. Thank you very much for your valuable information. So inshallah आपको ज़हमत हम देते रहेंगे बार-बार inshallah. Thank you, Dr. Mithani, Dr. Virani, and all the participants. Assalamu alaikum. Wa alaikum.